Assalamu alaikum, sir. This is Wasim Ahmed from Accounting Finance Semester 1. So, I have a topic today, the Gaussian elimination method. Today, we will solve the linear equations 2 by 2 or 3 by 3 with the help of Gaussian method. Gaussian method is also known as a row reduction method. We can solve the linear equations by different types of methods such as substitution method, elimination method, but today we will discuss or solve the linear equation with the help of Gaussian elimination method. 3 by 3 means 3 variables, 2 variables, and in this in Gaussian method the variables are in this square matrix, means 3 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, means the matrix will be organized into a square matrix, not another type of matrix. If square matrix not occurred, then we cannot apply the Gaussian elimination method on that. So come on, we will take an example, solve an example with the help of Gaussian method. So first of all, we will 2 by 2 linear equation solve with the help of Gaussian method. So I have an example 2.3 3.2 question number 1. I will solve it by Gaussian method. This is 2.3 question number 1. This is I want to solve and make a video on it. The question is that 3x minus 2y is equal to 7, 2x plus 4y is equal to 10. We can solve it by linear by elimination method or substitution method, but now I will solve it by Gaussian method. So I have a question is 3x minus 2y is equal to 7 and 2x plus 4y is equal to 10. 2x plus 4y is equal to 10. So Gaussian method says that the coefficient of the equation written in the matrix form. So the coefficient of this whole question has in equation 1 3 minus 2 and 7. Take a line, and 2 4 plus 10 means 2. Either we can eliminate the x, and only we will write here the coefficient of the equation. 3 minus 2 means it shows that it is equal to 7. 2 4 is equal to 10. So Gaussian method says that we should have to the main diagonal convert it into 1, and this is the main diagonal, so we have to convert it into 1, and this 4 have also convert it into the 1. This is the main diagonal, and we should have to convert it into 1, and this is the, and we should have to convert it into the 0, and it also we have to convert it into a 0. So first of all, we should have to convert it 1. So how can I convert it to 1? It is a row reduction method, means we can apply any method, the whole, we can apply any method or divide, multiply, plus minus on the row. there is no any distinguish between रो पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम किसी एक रो को पकड़ते हैं, उसके साथ 2 डिवाइड करा सकते, उस रो को किसी भी नंबर के साथ डिवाइड कराएं, मल्टीप्लाई करें, तो उसकी पूरी इक्वेशन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम पूरी रो को मल्टीप्लाई करा रहे हैं। या रो 1 से रो 2 माइनस करें, या रो 2 से रो 1 माइनस करें, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। So I have to convert it into 1. So how can I convert it to 1? So I can first row 1/3 multiply to row 1, and its result is also in row 1.
जैसा कि मैंने कहा कि किसी भी रो को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई डिवाइड आप करा सकते हैं। तो मैं रो 1 को 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा और उसका आंसर भी R1 में ही होना चाहिए, R2 पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम R2 को पहले सेम के लिख लेते हैं, 2 4 एंड दिस वन 10 मीन्स only on we will do an action on the R1, not with the R2. R2 will be same. So 1/3 multiply the R1. So this is the rough work. So 1/3 multiply R1. R1, what is R1? 3. First of all we have 3. So 1/3 multiply R1, this will be cancelled, it is equal to 1. So it will be equal to 1. And now we have to multiply 1/3 2 minus 2. So this will be not cancelled, the answer will be -2/3, then -2/3 answer. And 1/3 multiply into 7, so this will be not cancelled, so 7/3 will be the answer. 7/3 will be the answer, so I put here 7/3. Okay. And now the second term, second is that we have to convert this 2 into 0. So how can I convert it into 0? So if I multiply row 1 with the 2 and it minus to row 2, then it will become 0. So what should I do? Row 2 minus multiply 2 into row 1, and its answer will be shown in to row 2. ओके, इनसे जो R2 है, जो रो 2 है, उसमें से माइनस करेंगे रो 1, लेकिन 2 के साथ मल्टीप्लाई करके फिर रो 1 माइनस करेंगे। तो इसका मैं इसका इधर आंसर रफ बना लेता हूँ। तो हमने रो 1 को नहीं छेड़ना, रो 1 सेम ही की सेम रहेगी, मीन्स -2/3 इधर ही रहेगा, 7/3 भी इधर ही रहेगा। सिर्फ हमने रो 2 को पहले रो 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, फिर रो जो 2 है उसमें से जो इसका रिज़ल्ट आएगा उसे माइनस करना है। तो रो 2 क्या है? रो 2 है, सबसे पहले 2 है, तो -2 के साथ मल्टीप्लाई करना है रो 1 को। सो रो 1 फिर क्या है? 1 है, तो आ जाएगा 2 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 2, 2 प्लस जो 2 प्लस का 2 एंड माइनस का 2 इज़ इक्वल टू 0. So here will be the answer of 0. So we have the second is 4 minus 2. What is row 1? -2/3, -2/3. So 4 minus into minus plus, they will not cancel, 4/3. LCM निकलेगी 3, LCM आएगी 3 1 the 3, 3 4 the 12, plus 3 1 the 3, 1 4 the 4, 16/3. Answer is 16/3. And now we have to this one. So 10 minus row 2 10, 3 2 multiply row 1 में क्या है? 7/3. So this is not cancelled. 10 minus 14/3, 3 will be LCM, this will be 30 minus 3 14, 30 minus 14 is equal to 16/3. This is also the 16/3. So अब हमारा आंसर आ गया 1 - 2/3, ये 0 बन गया, 16/3, ये 16/3, 7/3. तो अब हमें क्या करना है? अब इसको हमने फिर 1 करना है। इसको 1 करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसको 1 करने के लिए हमें ऐसा करते हैं कि 3/16 के साथ इसे मल्टीप्लाई कराते हैं। अगर 3/16 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? जो रो जो 2 है इसे मल्टीप्लाई कराएंगे
3/16 के साथ। मीन्स 0 को भी 3/16 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 16/3 को भी 3/16 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, और जो 16/3 है इसको भी 3/16 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, और उसका जो आंसर आना चाहिए वो भी रो 2 में ही आना चाहिए। मीन्स रो 1 पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ये सेम रहेगी, -2/3 7/3। ओके, इस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो भी ऑपरेशन होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ रो 2 पर ही किया जाएगा। तो ये 16/3 अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो पहले सबसे पहले हमारे पास 0 इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है 3/16। ये 0 जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा आंसर 0 आएगा, तो इसका आंसर आएगा 0। और अगर इसको देखा 16/3 को अगर मल्टीप्लाई कराते हैं 3/16 के साथ तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा। और अगर इसको 16/3 को दोबारा मल्टीप्लाई कराते हैं अगर 3/16 के साथ तो इसका आंसर भी 1 आएगा, क्योंकि ये सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे। अब जो मेन डायगोनल है वो 1 हो गए, ये 0 हो गया। अब इससे 0 करना है, अब इसको 0 करने के लिए अब कोई और तरीका सोचते हैं। इसे 0 करने के लिए हम R2 को अगर +2/3 के साथ मल्टीप्लाई कराएं और उसे ऐड करें R1 के साथ, तो इसका ये 0 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, जो R2 है पहले इसको -R2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 2/3 के साथ 2/3 के साथ R2 को मल्टीप्लाई कराएं और उसे ऐड करें R1 में, और उसका जो आंसर आना चाहिए वो सिर्फ़ और सिर्फ R1 पर होना चाहिए। वैसे इसका R2 पर कोई भी असरअंदाज नहीं होगा, तो R2 सेम रहेगा। ठीक है, ये हम सेम लिख लेते हैं कि ये तो हमेशा चेंज नहीं होगा, तो सिर्फ़ और सिर्फ चेंज क्या होने वाला है, R1 होने वाला है। तो 2/3 को अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊँ R2 के साथ और उसे ऐड करूँ R1 में, तो उसका आंसर क्या आएगा वो देखते हैं। तो 2/3 अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊँ R1 के साथ R2 के साथ, तो आंसर अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई कराऊँगा और उसे मैं क्या करूँगा, प्लस करूँगा R1 में, तो उसका आंसर R1 क्या है, इधर R1 है 1, इसका आंसर क्या आना चाहिए, तो इसका आंसर आना चाहिए 1, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। और अगर 2/3 को मैं मल्टीप्लाई कराऊँ 1 के साथ और उसे ऐड करूँ R2 के साथ, मीन्स -2/3 के साथ, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 2/3 ये होगा, ये हो जाएगा 2/3, ये माइनस का 2/3, ये माइनस का ये प्लस का ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसका आंसर क्या आएगा 0, तो ये बन जाएगा हमारा 0। तो अब आखिरी रह गया, अगर 2/3 को मैं मल्टीप्लाई कराऊँ 1 के साथ तो आंसर 2/3 आएगा, और ऊपर क्या है उसे ऐड किसके साथ कराना है 7/3 के साथ। ठीक है, इसकी एलसीएम निकलेगी, एलसीएम क्या आएगी 3। ठीक है, अगर 3 आएगी तो ये 2 ये 7 ही 7 आएगा, क्योंकि एलसीएम सेम है। तो 2 + 7 = 9/3, 9/3, ये 3 का टेबल इस पर एक चक्कर, इस पर 3 दफ़ा आंसर क्या आएगा 3 आएगा, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 3। तो हमारा जो मकसद था, मीन्स मेन डायगोनल को 1 करना था, और जो ये वाले डायगोनल है इसे 0 करना था। जब ये हो जाए तो हमारा आंसर ही आ जाएगा। तो ये किसकी जगह हमने लिया था, ये x की जगह था, तो 1 × x, बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है तो प्लस ही रखेंगे। तो ये 0, ये किसकी जगह था, y की जगह था, y की जगह था। तो इस इक्वल टू किसके बराबर हुआ 3 के साथ, और इसका अगर सिंप्लीफाई करें तो x = कितना हुआ 3, क्योंकि y 0 × y 0 हो जाएगा, तो x हमारा बराबर आया 3 के। और ये दूसरे पर रखते हैं तो x इधर किसके साथ क्या है, x की वैल्यू 0 है, कोफिशिएंट x का 0 है, प्लस y कोफिशिएंट y का 1 है, और ये 1 के बराबर आया, तो ये x कैंसिल हो जाएगा, ये 1 बराबर आ जाएगा 1 के, y बराबर आ जाएगा 1 के। तो हमने x की वैल्यू और y की वैल्यू मिली, x की वैल्यू हमें 3 मिल गई और y की वैल्यू हमें
1 मिल गई। तो हम गॉसियन मेथड के साथ भी उसको लीनियर इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। 2/2 को भी 3/3 को, ये 2/2 का था, अब मैं 3/3 करने जा रहा हूँ। 3/3 करने के लिए हमें कोई और एग्जांपल लेना होगा, वो हम लेते हैं 3.3 के 3 में से मैं अब सॉल्व करने वाला हूँ। 3.3 में से सॉल्व करेंगे, अब 3 सॉल्व करते हैं, ठीक है। 3.3 में से 3 सॉल्व करते हैं, तो इसका ये 3/3 है। x1 x2 x3 x1 x2 x3 एंड x1 x2 x3 मीन्स 3/3 है। मीन्स 3 हमारे पास वेरिएबल्स हैं और 3 कोफिशिएंट है, और उनकी हमें वैल्यू मालूम करनी है। x1 की वैल्यू मालूम करनी है, x2 को और x2 की और x3 की। तो इसे भी हम एलिमिनेशन मेथड के जरिए करना सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसे ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, और इससे हम गॉसियन मेथड के ज़रिए सॉल्व करेंगे। तो इसका तरीका भी है, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इसको भी हम पहले मैट्रिक्स में लिखने की कोशिश करेंगे, फिर उसे जैसे 2/2 को किया था, 3/3 को भी ऐसे ही करना होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले इसे हम मैट्रिक्स में लिखने की कोशिश करें। सॉल्यूशन, इसके वेरिएबल को, इसके जो कोफिशिएंट है उसमें लिखेंगे। x1 का कोफिशिएंट 1 है, x2 का -1 है, x3 का 1 है, और -5 आंसर ये इधर लाइन लगा दें क्योंकि कैलकुलेटर। और x1 दूसरी इक्वेशन में x1 की वैल्यू है 3, x2 की 1 एंड x3 की -1 एंड ये बराबर है 25 के। x1 की इधर वैल्यू है 2 और x2 की वैल्यू है 1 और x3 की वैल्यू है 3 और ये 20 के बराबर। ये हमने एलिमिनेशन मेथड में मैट्रिक्स में लिख लिया। अब चलते हैं, इसको हम इसमें ये क्या करेंगे, जो इसका मेन डायगोनल होगा उसे हम 1 करने की कोशिश करेंगे, और जो ये 3 जो है ना, ये जो 3 है इसे हम 0 बनाने की कोशिश करेंगे। इसको 1 करने की कोशिश करेंगे और इसको 0 बनाने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से हमें x1 x2 और x3 की वैल्यू आसानी के साथ मिल जाएगी। तो मेन डायगोनल में ये हमारे पास 1 मिला हुआ है, तो इसे 1 करने की कोशिश नहीं करेंगे। इधर भी 1 मिला हुआ है, इसे भी हम 1 बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। ये 3 मिला हुआ है, इससे हम 1 करने की कोशिश करेंगे, और ये जो 3 मिला हुआ है इसे 0 बनाने की कोशिश करेंगे, इसको 0 बनाने की कोशिश करेंगे, और इसको 1 बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम 3 को 0 बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसको 0 बनाने के लिए हमें रो 1 जो है ना, ये हमारा रो 1 है, ये रो 1, रो 2 और रो 3। इसको रो 1 को हम क्या करें, 3 के साथ अगर मल्टीप्लाई कराएं और उसे माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें रो 2 में से, तो इधर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस वजह से हमें 0 बनाने के लिए हमें क्या करने है, रो 2 में से माइनस करें, अगर रो 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएं और वो माइनस कराएं R2 से, तो उसका आंसर भी R2 में होना चाहिए। तो सबसे पहले ये हम यहाँ पर रफ बना लेते हैं, जैसे हम जहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो R2 में से माइनस करना है, रो 1 को पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, उसका जो आंसर आए उसे हम R2 में से माइनस करें, और उसका जो आंसर शो होना चाहिए वो R2 नहीं होना चाहिए। मीन्स रो 1 और रो 2 पर और रो 3 पर कोई भी असर नहीं होना चाहिए। तो वो सेम रहेंगी, तो हम सेम लिख लेते हैं पहले। ये -5, रो 3 क्या है, 2, 1, 3 और ये 20, सही है। अब रो उस पर 2 पे काम करना है। रो 2 हमारे पास क्या है, 3 है। सबसे पहले रो 2 हमारे पास क्या था, 3 था, इसे माइनस करना है रो 1 के साथ। रो 3 मल्टीप्लाई रो 1, तो 3 फार्मूले का, और रो 1 इधर क्या है, 1 है, तो रो 1 क्या हो गया, 1 प्लस का 1। सो प्लस का 3 माइनस का 3 बन जाएगा 0। तो इधर आंसर क्या आएगा, 0। और अब रो 2 दूसरी बारी है रो 2 की और रो 2 क्या है, 1 है, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। इसे माइनस कराना है, रो 3 मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, ये 3 मल्टीप्लाई -1। अब इसका क्या होगा, ये 1 रो 2 का, ये -3 मल्टीप्लाई रो 1। अब माइनस इनटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 और प्लस का 1 क्या बन जाएगा, 4 प्लस का, या 4 प्लस का। अब हम आ जाते हैं दूसरे पर, ये माइनस का
रो टू में क्या है -1 है, तो -1 हम यहाँ रखेंगे। फार्मूले का 3, ये फार्मूले का 3, रो 1 कहाँ क्या है, रो 1 हमारे पास 1 है, तो अब क्या होगा -1 -3 क्या होगा -4 आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या रखेंगे हम -4। अब दूसरे उस पर आ जाते हैं। रो 2 क्या है हमारे पास 25 है, ये 25 रो 2 माइनस फार्मूले का 3 और रो 1 क्या है -5 है। माइनस इंटू माइनस प्लस 5 3 द 15 प्लस 15 और प्लस 25 कितना होगा प्लस का 40। तो इसका आंसर क्या आया हमारा 40। तो अब हमारे पास ये मैट्रिसेस बन गई। अब हमें ये ज़ीरो हो गया। अब हमें ज़ीरो क्या करना है, इस 2 को ज़ीरो करना है। इस 2 को ज़ीरो करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस 2 को मल्टीप्लाई ज़ीरो बनाने के लिए हमें रो 3 में से माइनस करना होगा। रो 1 को पहले मल्टीप्लाई कराएंगे 2 के साथ और वो माइनस कराएंगे रो 3 के साथ, तो यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा। तो करते हैं रो 3 में से माइनस कराएं, पहले मल्टीप्लाई करें रो 1 को 2 के साथ और माइनस कराएं रो 3 के साथ, और इसका जो आंसर आना चाहिए वो हम और रो 3 में ही आना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये पहले रो 3 सेम की सेम लिख लेते हैं। रो 3 नहीं, रो 1 और रो 2 सेम ही लिख रहेंगी, तो इसे हम सेम लिख लेते हैं। सो रो 1 और रो 2 सेम ही रहेंगी। इसका सिर्फ और सिर्फ असर किस पे होगा, रो 3 पे होगा, इसलिए हमने रो 3 खाली छोड़ दी। तो अब इसको फार्मूले के ज़रिए करते हैं। रो 3 क्या है, इधर पर 2 है, रो 3 क्या है 2 -2 फार्मूले का। रो 1 यहाँ पे क्या है, रो 1 यहाँ पे 1 है, ये रो 1 हो गया 1। अब -2 + 2 = 0, क्या आंसर आया 0। अब रो 3 क्या है हमारे पास 1 माइनस फार्मूले का 2 और रो 1 यहाँ पे क्या है -1 है, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, +1 और +1 = 3, ये क्या बन जाएगा 3। और रो 3 क्या है यहाँ पर 3 -2 फार्मूले का, और यहाँ पे रो 1 में क्या है 1 है, तो -2 और +1 = 1, ये आंसर आ गया 1। और अब हमारे पास क्या है रो 3 क्या है 20, रो 3 क्या 20 है, माइनस फार्मूले का 2 और मल्टीप्लाई कराना है माइनस रो 1 के साथ, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 5 3 द 15 20 + 15 और 15 नहीं 2 5 द 10, ये 10 होगा प्लस का 10, 20 + 10 = 30। तो 0 3 1 30, 0 3 1 और आंसर क्या आया 30। ये हमारा मैट्रिक्स बन गया दूसरा। अब हमें क्या करना है, ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया। अब इससे 1 बनाने की कोशिश करनी है, रो 2 को 1 बनाने की, क्योंकि ये हमारा मेन डायगोनल जो भी होगा ये पूरा का पूरा 1 होना चाहिए। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, सिर्फ ये रहता है 1। तो सबसे पहले हम इसे 1 बनाने की कोशिश करेंगे। तो 1 बनाने के लिए इसे हम क्या करेंगे, 1 और रो 2 को अगर मल्टीप्लाई करें 1/4 के साथ, तो यह 1 बन जाएगा। और इसका आंसर रो 2 में ही होना चाहिए, रो 2 को मल्टीप्लाई करें 1/4 के साथ। तो सबसे पहले हम इसका रो 2 का असर होगा, रो 1 और रो 3 सेम ही रहेंगी, तो इसे हम रो 1 और रो 3 को पहले लिख लेते हैं। ये हमने लिख ली। अब रो 2 पे जो सारा का सारा असर पर, रो 2 को मल्टीप्लाई कराना है 1/4 के साथ। रो 2 क्या है 0 को अगर 1/4 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 0 किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे आंसर 0 ही आएगा। अब 4 को मल्टीप्लाई करना है 1/4 के साथ, ये 4 रो 2 का, ये 1/4 फार्मूले का, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। आंसर क्या आएगा 1 आएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब रो जो 2 है, अब -4 को मल्टीप्लाई कराना है 1/4 के साथ, ये -4 × 1/4 ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा -1, तो ये -1 बचेगा। तो अब रो 2 को फिर 40 के साथ मल्टीप्लाई कराना है, 40 × 1/4 के साथ फार्मूले वाला 1/4, ये एक दफ़ा जाएगा, 40 पे 10 दफ़ा जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 10, आंसर आया 10। अब मेन डायगोनल हमारा 1 हो गया। अब सिर्फ एक ही काम रहता है, 3 को हमने 0 बनाना है किसी भी करके। तो 3 को 0 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, अब अगर यहाँ पर हमें 0 चाहिए, तो मैं अगर R2 के साथ में
R2 के साथ अगर मैं 3 मल्टीप्लाई कराऊँ और उससे माइनस करूँ R3 में से, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो क्या करना आएगा, R3 में से माइनस कराएँ अगर R2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करा के, तो उसका जो आंसर आना चाहिए वो R2 वो R3 में ही आना चाहिए। तो ये दोनों उसकी सेम रहेंगी, तो हम सेम लिख लेते हैं। हमने लिख लिया। अब आर फार्मूले के ज़रिए से R3 हमारे पास क्या है, 0 है। 0 मल्टीप्लाई 3 क्या है हमारे पास, 0 R3 है माइनस 3 फार्मूले का। R1 क्या है, R1 हमारे पास R2 हमारे पास क्या है, 1 है। तो 0 माइनस 3 1 0 माइनस 3 1 नहीं है। अब R2 में क्या है, 0 है। R2 में क्या है, 0। तो 3 मल्टीप्लाई 0 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो इधर आंसर क्या आएगा, 0। और अब R3 हमारे पास क्या है, 3 है पहले। तो 3 माइनस R3 हो गया। अब माइनस फार्मूले का और 3 फार्मूले का 3। अब R2 की जगह क्या है, 1 है। सो 3 1 द 3 प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये भी हमारे पास 0 आ गया। अब हमारे पास क्या है, R3 क्या है हमारे पास, R3 हमारे पास 1 है। ये 1 माइनस फार्मूले का 3 और R2 यहाँ पर क्या है, -1 है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3 1 द 3 3 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास क्या आ गया, 4। ये 4 आ गया। अब दूसरा R3 क्या है हमारे पास, 30 -3 फार्मूले का R2 क्या है हमारे पास, 10। ठीक है। अब प्लस 30 माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया, 0 आ गया। अब हमें क्या करेंगे, इससे हम फिर उसमें फॉर्म लिखना होगा। तो यहाँ पर x1 क्या है, 1 है। माइनस x1 का क्या है, माइनस का x2 माइनस का 1 है। और यहाँ पर प्लस x3 क्या है, x3 1 है। ये इस इक्वल टू -5 सेम ही रहेगा। और ये दूसरी रो में क्या है, x1 0 है। तो x1 0 के साथ मल्टीप्लाई आएगा तो 0 ही आएगा, तो इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। और बीच में प्लस है। x2 क्या है, 1 है। तो x2 ये रहेगा। और माइनस का x3 है। और ये आंसर 10 बराबर है। ये दोनों 0 है तो ये 0 ही रहेंगे। और ये प्लस का 4x3 और ये हमारा पास आ गया 0। अब x3 हमें मालूम है। तो x3 अगर x3 को देखा जाए तो इसको इधर देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये 0 हो गया। अब x3 यहाँ से हमें मालूम हो सकता है कि x3 की वैल्यू क्या आएगी, 4 इंटू x3 इज इक्वल टू 0। और 4 को इधर लेके जाएंगे तो x3 की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। हमें x3 वैल्यू मालूम, x3 की वैल्यू पता चल गई। अब x3 अगर इक्वेशन 2 में रखेंगे तो x3 अगर इक्वेशन 2 में x2 की वैल्यू मिल जाएगी। अगर x2 और x3 की दोनों की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे तो उसमें से हमें इक्वेशन 1 मिलेंगे। अब इक्वेशन 2 में देखते हैं कि क्या है। इक्वेशन 2 में मीन्स x3 इज इक्वल टू 0, पुट इट इनटू इक्वेशन 2। सही, ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन 2 है और ये हमारी इक्वेशन 3 है। सही है। x3 वैल्यू मान में इक्वेशन 2 में रखें। अगर x2 इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, x2 प्लस माइनस x3 इज इक्वल टू 10। सही है। x3 की हमें वैल्यू पता है, x2 की हमें नहीं पता है, सेम ही रहेगा। x3 की वैल्यू हमें पता है 0 है और यहाँ 10 के बराबर है। 0 माइनस का है तो इधर जाएगा, प्लस का हो गया। 10 प्लस 0 इज इक्वल टू 10। तो x2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 10। तो x2 की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब x2 भी हमें पता है और x3 भी हमें मीन्स x2 भी हमें पता है और x2 भी हमें पता है 10 के बराबर है और x3 भी हमें पता है 0 के बराबर है। अगर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में लिखें तो हमें x1 की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है x1 माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू -5। अब हमें x2 की वैल्यू पता है और x3 की पता है। तो x1 मालूम करने के लिए हमें दोनों वैल्यू को पता है। x2 की वैल्यू क्या थी, माइनस फार्मूला 10 प्लस x3 की वैल्यू क्या है, 0 इज इक्वल टू -5।
तो x1 माइनस 10 प्लस 0 इज़ इक्वल टू -5। ये x1 माइनस का है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। x1 इज़ इक्वल टू किसका प्लस का हो जाएगा, x1 इज़ इक्वल टू -5 प्लस 10। तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 5। तो हमें x1 की वैल्यू मिल गई, मीन्स x1 बराबर है 5 के, x2 बराबर है 10 के और x3 बराबर है 0 के। तो हम गॉसियन मेथड के साथ भी हम 3 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। x1 x2 x3 हमें आंसर मिल गया। अगर हमें x1 की जगह 5 रखें, x2 की जगह 10 और x3 की जगह 0 रखें तो वो इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये था हमारा गॉसियन मेथड। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज़।